Okay, so friends, now we will see which type of alkene shows geometrical isomerism. Okay, अब ये देखो हमने ये भी डिस्कस किया है कि कुछ अल्कीन्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, लाइक टर्मिनल अल्कीन्स, राइट? दिस टाइप ऑफ अल्कीन्स C double bond CH2, terminal alkenes, 1,1 disubstituted alkenes. Okay, now this type of alkenes, they do not show cis and trans isomerism. How they do not show cis and trans isomerism or geometrical isomerism, that also we will see. Now see, suppose I'll take first type of alkene. Okay, ये दो टाइप के alkenes, यहाँ पे दो टाइप्स के alkenes geometrical isomerism नहीं दिखाते. सपोज मैं एक लेता हूं टर्मिनल alkenes के बारे में. ओके, terminal alkenes. Now why they don't show geometrical isomerism or cis trans isomerism? Now look at the example like this, C double bond CH2. ओके, अब यहाँ पे देखो, समझो मेरे पास है R1 R2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स है. यहाँ पे मैं लेता हूं एग्जांपल के लिए CH3 CH3. अब यहाँ पे मैं दो डिफरेंट लेता हूं R1 एंड R2, यानी मैं दो अल्काइल ग्रुप लेता हूं C2H5, एक CH3 लेता हूं और एक C2H5. वन इज मिथिल एंड अनदर इज इथिल. ओके, डबल बॉन्ड CH2. now will it show cis and trans isomerism? It will not show cis and trans isomerism because the two groups or two atoms attached to this carbon are identical. Now here they are different. अब ये देखो, now look at these two carbons, friends. Now look at the doubly bonded carbon atoms. Okay, doubly bonded carbon atoms. This carbon possess different groups, but this carbon possess identical atoms. So it will not show cis and trans isomerism. How it will show cis and trans isomerism? Suppose अब ये हाइड्रोजन की पोजीशन भी चेंज की तो भी ये दोनों भी आइडेंटिकल हाइड्रोजन ही है. So it will not show cis and trans isomerism. Okay, and this is the case with 1,1 mono substituted, mono disubstituted, you can say 1,1 disubstituted alkene, terminal alkenes. अब यहाँ पे देखो, समझो दूसरे टाइप का अल्कीन लिया मैंने, एक ऐसे टाइप का अल्कीन देखो CH3 C2H5. ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है. अब देखो, दिस टू ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन दिस कार्बन, बट ऑन दिस कार्बन दिस टू ग्रुप्स आर आइडेंटिकल. ओके, सो इट विल नॉट शो cis and trans isomerism. अब देखो, ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन में दिखाता हूं आपको. इस कार्बन पे दो ग्रुप है, एक CH3 है और दूसरा है C2H5. ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप है इस कार्बन पे, लेकिन इस कार्बन पे दोनों भी क्या है, आइडेंटिकल, दैट इज CH3 CH3. So whether if you replace the position or change the position of both CH3, but both are identical, so you will get the same isomer. Okay, यही आइसोमर आपको फिर मिलेगा. So cis and trans का तो उसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है. ओके, तो इस टाइप के अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते. अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कौन से टाइप के अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं. ठीक है, ओके, नाउ विल टेक एग्जांपल्स. So third point we have to see here, which type of alkene shows geometrical isomerism. Now this type of alkenes, they do not show cis and trans isomerism, that is geometrical isomerism. Now write down third, alkenes showing geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Now I am taking example. Okay, very simple. Geometrical isomerism. I am taking first example. Now write down RCH double bond CHR. Alkenes of type RCH double bond CHR. ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल. ये RR आइडेंटिकल है. RR का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों भी ग्रुप क्या है, सेम है. ठीक है, अब देखो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, सपोज मैंने C2H5 लिया है. यहाँ पे C2H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C2H5 तो यहाँ पे भी क्या है, C2H5. ठीक है, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, hex 3 in you can write. Now this alkene I can write, if I expand the structure, elongate the structure, it will become CH double bond CH
CH2CH3, बहुत ही सिंपल है। C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 3 इन, ठीक है, हेक्स 3 इन, वेरी सिंपल। अब हेक्स 3 इन को मैं सिस और ट्रांस फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो ये कार्बन और ये कार्बन कंसीडर करना है आपको, डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। मैं डबली बॉन्डेड कार्बन कंसीडर कर रहा हूं। अब इस कार्बन पे है हाइड्रोजन और इथिल ग्रुप, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन और इथिल ग्रुप। इस कार्बन पे भी क्या है? हाइड्रोजन और इथिल ग्रुप, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन और इथिल ग्रुप, ठीक है। अब आपको पता है इफ आइडेंटिकल एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन इट इज अ सिस, व्हाट? सिस हेक्स 3 इन, it is a cis isomer. And if I change the position on this carbon, if I change the position of C2H5 and hydrogen, I will get trans isomer, trans hex 3 in. So these type of alkenes, they show what? Geometrical isomerism. Okay, have you understood how this type of alkenes shows geometrical isomerism? Very easy. Okay, so note down the example and draw you can yourself draw the trans form of it. Okay, so write down the structure, draw the structure. So what is the trans isomer of this? You can write the trans isomer of this, very simple. C double bond C H C2H5. अब आप ये भी चेंज कर सकते हो पोजीशन, या इस कार्बन पे भी चेंज कर सकते हो। मैं इस कार्बन पे चेंज कर रहा हूं, सेकंड कार्बन पे, सो इट बिकम्स व्हाट? ट्रांस हेक्स 3 इन। ओके, वेरी सिंपल। सो ड्रॉ द बोथ द स्ट्रक्चर्स एंड देन विल सी नेक्स्ट टाइप ऑफ व्हाट? alkenes showing geometrical isomerism. Okay, now take second example, second type of alkene. R1 R2 राइट डाउन। अब ये देखो स्लाइटली मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे। ओके, आई एम स्लाइटली चेंजिंग दिस टाइप ऑफ alkene. Second, now take second type of alkene. देखो अब ये भी alkene दिखाएगा। देखो R1 R2 R1 R2, इसका मतलब है R1 R1 सेम है, R2 R2 सेम है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं। देखो यहां पे मैं CH3 लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पे भी CH3 लेता हूं, R1 R1 सेम, R2 विल बी डिफरेंट, C2H5, यहां पे भी मैं C2H5 लेता हूं, ठीक है। तो अब इसके सिस और ट्रांस आइसोमर निकाल सकते हो दोस्तों। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस alkene and name the alkene and draw the structures. Draw the cis and trans form, very easy. Okay, अब ये देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो देखो 1 2 3 4 की तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, 2 + 2 4 और ये 2 6 कार्बन, ठीक है। सो ऑन थर्ड कार्बन देयर इज वन मिथिल ग्रुप एंड हियर आल्सो ऑन थर्ड कार्बन देयर इज अ मिथिल ग्रुप, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज देयर। ओके, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन, सो 3,4 डायमिथिल हेक्स 3 इन। Okay, what is the name? 3,4 dimethyl hex 3 in, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब इसका सिस और ट्रांस आपको निकालना है। देखो मैं सिस ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ आइडेंटिकल एटम CH3 CH3, नाउ दिस कार्बन ड्रॉ फर्स्ट doubly bonded carbon, then put the groups. Okay, on this carbon there are two groups, CH3 and C2H5, CH3 C2H5. ओके, और इस कार्बन पे भी वही ग्रुप है। अब एक तो मैं CH3 ऊपर लिख सकता हूं, नहीं तो नीचे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे C2H5, तो ये कौन सा आइसोमर होगा? इट इज अ सिस। ओके, सिस 3,4 डायमिथाइल हेक्स 3 इन। ओके, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सिस
3,4 dimethyl hex 3-ene. Then you can draw for trans. Now suppose I will change the position here. CH3, I will write CH3 here and C2H5 here. What will be the name of the isomer? It will be a trans 3,4 dimethyl hex 3-ene. Okay, very simple. Because the identical group of atoms, they are on the opposite side of the double bond. Okay, very easy. So draw the example and their cis and trans isomers. Okay, very easy. Now take next type. Third type we are taking. So it is for your understanding whether they show geometrical isomerism or not, and which alkenes are showing geometrical isomerism. Okay, third type I am taking here. Now see, third type. R1CH double bond C R1R2. R1CH double bond C R1R2. देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं. CH3 CH डबल बॉन्ड C. अब यहाँ पे R1 में पुट करूंगा CH3. ठीक है, CH3 और दूसरा कौन सा तो ग्रुप लूंगा यहाँ पे मैं C2H5. ठीक है, मैंने R2 लिया. R1 R2 इसका मतलब क्या है? R1 अगर मैंने CH3 रखा तो R2 वो नहीं है, डिफरेंट है. ओके, सो R1 विल बी द सेम. अब इसका सीज और ट्रांस आइसोमर हो सकता है. देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन आपको सिलेक्ट करनी है. 2 + 1 3, 3 + 2 5. ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन मुझे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे इस साइड से आता है और इस साइड से 1 2 थर्ड कार्बन पे आता है. तो मैं इस साइड से नंबरिंग दूंगा. ठीक है, 1 2 3 4 5. ओके, लेकिन थर्ड कार्बन पे मिथिल ग्रुप है तो 3 मिथिल बेंट 2-ene will be the IUPAC name of this compound. ओके, अब इसको मुझे सिस और ट्रांसफॉर्म इसमें ड्रॉ करने हैं इस कंपाउंड के. ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं. C डबल बॉन्ड C, वेरी सिंपल. देखो अब ये CH3 तो कांस्टेंट है. इस कार्बन पे CH3 और H है, मैं लिख रहा हूं. देखो CH3 और H, और इस कार्बन पे CH3 और C2H5 है. ठीक है, CH3 और C2H5. ठीक है, now see, in this way you can change the position. Now here you can change the position and you can draw the cis and trans isomers of this. Okay, now draw the structure first. I will tell you how to see the cis and trans isomer in this case. तो इस केस में आपको क्या करना होता है? देखो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर ऐसे कंसीडर कर रहे हो कि CH3 वो आइडेंटिकल एटम्स है, आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन ये आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एटम नहीं है. ठीक है, तो आपको क्या करना होता है इस केस में? आपको डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो ग्रुप है उनको असाइन करना होता है स्मॉलर और बिगर में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन जो है स्मॉलर है, इसलिए मैं सेकंड प्रायोरिटी देता हूँ, और ये CH3 जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है. ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ. ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप है इस कार्बन पे. ठीक है, अब इस कार्बन पे देखो ये छोटा ग्रुप है, इसलिए मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी देता हूँ, और ये बड़ा ग्रुप है C2H5, इसलिए इसको मैं फर्स्ट ग्रुप देता हूँ. अब देखो ये फर्स्ट वाला ग्रुप ये अपोजिट साइड में, या सेकंड वाला ग्रुप ये अपोजिट साइड में, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस और ई कॉन्फ़िगरेशन. ओके, ई कॉन्फ़िगरेशन और Z कॉन्फ़िगरेशन ये आपको है 12th में, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया. ट्रांस व्हाट 3 मिथिल पेंट 2-ene. ट्रांस क्यू, ये ट्रांस क्यू देखो ये CH3 सेम साइड है, लेकिन ये तो ग्रुप आइडेंटिकल नहीं है,
तो उस केस में आपको क्या असाइन करना होता है, आपको प्रायोरिटी असाइन करनी होती है। दोनों भी कार्बन को देखो, उस कार्बन पे, ईच कार्बन पे आपको क्या करना है, असाइन करना है लोअर और हायर प्रायोरिटी ग्रुप। ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है तो ये सेकंड प्रायोरिटी होगी, और ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है इस कार्बन पे, इसलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी। इस कार्बन पे देखो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप है बिकॉज इट कंटेन्स 2 कार्बन, सो इट इज अ हायर प्रायोरिटी ग्रुप 1, एंड इट इज अ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, सो सेकंड। ठीक है, तो अब ये सेकंड जो है वो अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड के, और ये फर्स्ट भी अपोजिट साइड में है, इसलिए इनको हम कह सकते हैं ट्रांस। ठीक है, अब मैं ये पोजीशन चेंज करता हूं, इस कार्बन पे पोजीशन चेंज करो, नहीं तो इस कार्बन पे पोजीशन चेंज करो, आपको जो मिलेगा वो होगा सिस 3 मिथिल पेंट 2 इन। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं पोजीशन, हाइड्रोजन और CH3। ठीक है, देखो अब ये फर्स्ट है प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी, तो फर्स्ट एंड सेकंड दे आर ऑन द सेम साइड, so it becomes now cis what 3 methyl pent 2 in. Okay, so draw the cis and trans isomers of this type of alkene. So such kind of alkenes they show geometrical isomerism. Okay, ठीक है, very simple। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और आपको आइडेंटिफाई करने हैं whether these alkenes shows cis trans isomerism or not. Write down question on this. Identify whether the following alkenes shows, write down question, identify whether the following alkenes show geometrical isomer or not, or geometrical isomerism or not. Okay, draw cis and trans forms. ओके, जिस केस में वो दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उस केस में आपको सिस और ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, सेकंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, फोर्थ CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। देन फिफ्थ CH3 C2H5 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ओके, तो ये 5 आपको अल्कीन्स दिए हैं और ये 5 अल्कीन्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं whether they show cis trans isomerism. If they show cis and trans isomerism, draw their cis and trans forms and predict whether these alkenes they show what, cis trans isomerism or not. Okay, and draw their cis and trans forms. Okay, so take the questions first.
Okay, so in this way we have seen, friends, geometrical isomerism in alkenes, and which type of alkenes shows geometrical isomerism and why they show geometrical isomerism. Okay, and we have also seen how to draw the cis and trans forms of them. Okay, very simple. ठीक है, so आज यहाँ पे ही हम स्टॉप कर दे लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पोर्शन हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. ठीक है.